Okay, so we will be starting with chapter number 3, also known as aircraft registration marks and nationality marks. Okay, so where does it written, Pranika, that we have to mention the aircraft registration marks and the nationality marks? It is written in ICAO document annexure number 7. Okay, so basically in DGCA they also ask in which annexure this is mentioned. Okay, so we will also be noting down the annexure as well. ठीक है यार, are you comfortable in Hindi? Yes, I am. ओके, हम दोनों लैंग्वेज को यूज करके we will study. ठीक है, so now this annexure contains only standard. That means the aircraft nationality mark contains only standard practices. We have certain standard and recommended practices as well in ICAO. Now, what is standard? Standard is, Pranika, is like you have to do this. ठीक है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर दिस, तुम्हें करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन इंडिया. ठीक है, जस्ट लाइक in India we have the number plates on the vehicles, right? So that is standard. Without the number plate you cannot ride your vehicle. If you get caught you have to pay very heavy fine. ठीक है, जेल भी हो सकती है. So this is standard practice. And what is recommended practice वो रहती है कि there is an option. ठीक है, if you want to you can, but अगर आप वो चीज करोगे, क्योंकि आयकाओ ने बोला अगर आप वो चीज करोगे so it will help you, वो बेनिफिट करेगी. ठीक है, so you must understand here is it is really important to understand a difference between standard एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस. ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब दैट हमें वो प्रैक्टिस करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट, और रिकमेंडेड मतलब आपको कर भी सकते हो या फिर आपके ऊपर चॉइस है, यू कैन नॉट, यू कैन ऑल्सो स्किप दैट. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. ओके, ग्रेट. नाउ यार, मेजरमेंट ऑफ नेशनैलिटी मार्क्स. नेशनैलिटी मार्क क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ हाउ डज नेशनैलिटी मार्क्स लुक्स. ठीक है, इन एन एयरक्राफ्ट. ओके, अरे व्हाट इज दिस यार, कहाँ है भाई, क्या कर दिया? सी दिस, कैन यू सी? नवंबर 9000 एको चार्ली. ठीक है, सो दीज आर नोन एज नेशनैलिटी मार्क. जो नंबर प्लेट हमारी गाड़ी पे रहती है वही Mm. सेम रजिस्ट्रेशन जो होता है एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लिखा जाता है, बट एयरक्राफ्ट पे नंबर प्लेट तो होती नहीं है. ठीक है, बिकॉज इट विल डैमेज, इट विल हैम्पर द एरोडायनामिक्स ऑफ द एयरक्राफ्ट. ठीक है, सो इसलिए हम उसकी बॉडी पे मेंशन करते हैं एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन. ओके, सो इंडिया में जो एयर, मैं बता देता हूँ कोई एयरलाइन से कोई भी सर्च करता हूँ, इंडिगो एयरक्राफ्ट लिख देता हूँ. सो वेयर इट इज प्रॉपरली, हाँ ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन मार्क लिखा है ना, वीटी. क्लियर नहीं दिख रहा, बट हमारे जो फ्यूजलाज के ऊपर विक्टर टैंगो करके रजिस्ट्रेशन मार्क लिखा रहता है. तो ये जो रजिस्ट्रेशन मार्क है ना, इन्हें थोड़ा सा हम डीपली स्टडी करते हैं. ठीक है, आपको ऑलरेडी Okay. पता ही होगा कि आपने आरटीबी पढ़ रखा है. सो वी हैव सर्टेन आईकाओ कोड्स. ठीक है, वी इज फॉर कंट्री कोड, and next code is for IFR code like VABB. ठीक है, V for India, A is for Mumbai IFR, and last two codes are for city. ठीक है, similarly in registration also we have these kind of codes, ABC like this for example. ठीक है, इसमें what happens, this is Victor Tango is given to India. ठीक है, Victor Tango is the code word for India, and ABC for example any three digit code is for any aircraft. ठीक है, it depends on aircraft to aircraft, these three words will change, but this VT will be same for all the aircraft which are registered in India. ठीक है, whether it is Airbus 320, whether it is Boeing 737 or Cessna or Diamond or TACAM, any aircraft, अगर starting में VT है, that means that aircraft belongs to India, it can fly under Indian airspace. ठीक है, इतना क्लियर है? Yes. Now, how?
हाँ, that means हम how to measure like what is the length, what is the dimensions of these registration marks. ठीक है, तो यार wings के ऊपर when we write the registration marks on wings, the mark shall consist of 50 centimeter long. ठीक है, 50 सेंटीमीटर की उनकी डायमेंशन होनी चाहिए इफ दे आर ऑन विंग्स। ठीक है, विंग्स पे 50। इफ दे आर ऑन फ्यूजलाज, फ्यूजलाज मतलब जो वर्टिकल टेल के पास, अभी हमने इंडिगो का एग्जांपल देखा एयरक्राफ्ट का। सो सारे इंडिगो हो, एयर इंडिया हो या कोई भी हो, वहां पे एक फ्यूजलाज पे भी वी हैव टू राइट एंड द लेंथ ऑफ द एयरक्राफ्ट, सॉरी लेंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन मार्क इज 50 सेंटीमीटर व्हेन इट इज रिटन ऑन फ्यूजलाज। ठीक है, फ्यूजलाज पे कितना है 30, विंग्स पे कितना है इट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ एयरक्राफ्ट इज लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट। यार एनी आइडिया व्हाट इज लाइटर देन एयर एयरक्राफ्ट मींस? एनी आइडिया जर्नल? No. But ओके, ट्राई we ट्राई। go by the if we go by the wordings, या so maybe like aircrafts like ATR, ओके, right? लाइटर देन एयर मींस द एयरक्राफ्ट which is light than air. Okay, right. Huh. Okay, light than air, that means its weight is lighter than air. Which aircraft is this? Any Is it ATR? Like it goes in air lighter. एयरक्राफ्ट एटीआर का वेट एयर से कम है क्या? I have no idea, sir. I'll tell you. The aircraft which has the light weight than air is known as lighter than air aircraft. Now, what are these? Have you seen hot air balloons? Oh, okay, right. Yeah. Huh. So that is lighter than. That means without any external power, external engine, these aircraft can fly in Like, the air. ठीक है, yes. those are known as lighter than air aircraft. So that are hot air balloons. हॉट एयर बलून में भी वी सप्लाई सर्टेन गैसेस। ठीक है, आग निकलती है, गैस होती है, बट Yes. एक्सटर्नल पावर नहीं है, कोई इंजन नहीं है। सो इन दैट Hmm. केस दोज एयरक्राफ्ट आर नोन एज लाइटर देन एयर। ठीक है, सो अगर लाइटर देन एयर कोई एयरक्राफ्ट है, सो उस पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन मार्क है दैट ऑल्सो हैज टू बी ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, विंग्स पे 50 सेंटीमीटर, फ्यूजलाज पे 30 एंड लाइटर देन एयरक्राफ्ट पे 50 Sorry. सेंटीमीटर। ठीक है, सेम Yes. रहेगा। नाउ व्हाट आर नेशनल प्रोविजंस? नेशनल प्रोविजन में क्या होता है? इन केस ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट, सर्टिफिकेशन shall also include validity of lease and name, nationality of address of lessor and leases. I will tell you an example. Lease aircraft means I own an airline, ठीक है, but I don't have certain like amount of money to buy an airline. ठीक है, एंड यू आर द प्रोडक्टर। ठीक है, यू आर द मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल आप एयरबस की कंपनी की हेड हो, यू आर द ओनर ऑफ एयरबस। नाउ यार आई विल कॉन्टैक्ट यू कि यार प्रणिका, आई डोंट हैव सो मच ऑफ मनी, 500 करोड़ रुपीस, सो हाउ कैन आई बाय द एयरक्राफ्ट टू यूज इट। ठीक है, मुझे कमर्शियल पर्पसेस के लिए आई वांट टू डू बिजनेस। सो यू गिव मी एन आइडिया, यार व्हाई डोंट यू टेक ऑन लीज? लीज इज सॉर्ट ऑफ रेंट। ठीक है, रेंट की तरह ही होता है, बट रेंट थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लीज क्या होता है थोड़ा चीपर रहता है। अब लीज में क्या रहेगा? लीज में आपने मुझे हमने साइन किया लीज के ऊपर, सो मैंने आपसे एयरक्राफ्ट लीज पे ले लिया फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स। ठीक है, ये फिक्स रहता है 10 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स, 50 तो ज्यादा हो गया, 10, 20, 15 समथिंग रहता है। सो आफ्टर दैट मैंने आपसे एयरक्राफ्ट ले लिया। अब जब एयरक्राफ्ट लिया लीज पे, तो लीज भी दो तरीके की होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ लीज इज ड्राई लीज एंड सेकंड टाइप ऑफ लीज इज वेट लीज। ठीक है, ड्राई लीज में क्या होता है? ड्राई लीज में अगर जैसे मैं आपको एयरक्राफ्ट आप मुझे दे रही हो, तो आप मुझे उसका क्रू प्रोवाइड नहीं करोगी, ओनली Hmm. एयरक्राफ्ट यू विल बी प्रोवाइडिंग मी। ठीक है, विदाउट पायलट, विदाउट केबिन क्रू। बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग मी एन एयरक्राफ्ट विथ क्रू, आप मुझे क्रू भी दे रही हो कि यार नहीं, आई डोंट रिलाई ऑन योर पायलट्स, ओनली माई क्रू विल ऑपरेट द एयरक्राफ्ट। सो इन दैट केस वो लीज कहलाती है वेट लीज। ठीक है, वी हैव टू काइंड्स ऑफ लीज इन एविएशन, वेट लीज एंड ड्राई लीज। वेट लीज में द मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स crew also, and in dry lease manufacturer does not provide any crew.
ठीक है। Yeah. ओके, नाउ रजिस्ट्रेशन मार्क्स। अब रजिस्ट्रेशन मार्क्स कैसे होते हैं? इन इट हैज बीन अलॉटेड, इंडिया हैज बीन अलॉटेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स। इंडिया है भाई ये, मिट कैसे क्या, INDIA। So, India has been allotted nationality symbols AT and AW by ITU. So, Pranika, ITU stands for International Telecommunication Union। ठीक है। सो जो हमारा AT, VT, AW, ये जो सारी चीजें है ना, सो ये दीज सिंबल्स हैव बीन गिवन बाय ATU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एंड ये नॉट ओनली इंडिया, ATU वर्ल्ड वाइड जो है सारी कंट्रीज को रजिस्ट्रेशन मार्क्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ये Sir, I वेरीफाई। had a doubt. As you said, see, VT is for India, and the code next, the three-letter code, like if it is Alpha, Beta, Charlie, Alpha, Bravo, Charlie. So, is it like it depends on aircraft or airline? As in, if it is Boeing 737, so it will have a particular code, or does that depend on the airline? सी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एयरलाइन व्हेन यू फाइल द रजिस्ट्रेशन। आप जब जैसे गाड़ी आप लेते हो, आप फाइल करते हो, ठीक है। सो इन एयरक्राफ्ट में ना यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन सजेस्ट यार ये वाला मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, सो वो DGCA विल प्रोवाइड। ठीक है, बट कंट्री का जो कोड रहता है, कंट्री कोड इज That is it. प्रोवाइडेड बाय। Okay. ठीक है, तो अब जैसे विक्टर टैंगो तो ठीक है ITU ने दे दिया, बट अल्फा Hmm. ब्रावो चार्ली, अब फॉर एग्जांपल मेरी एयरलाइन इंडिगो है, तो मैं अगर चाहूँ तो इंडिगो की जगह IDG करके भी रजिस्ट्रेशन नाम का एक एयरक्राफ्ट ले सकता हूँ। ठीक है, IND करके भी ले सकता हूँ। सो इट Okay. डिपेंड्स ऑन मी, आई कैन सजेस्ट DGCA को, यार प्लीज अगर ये वाला अवेलेबल है, सो प्लीज ये वाला मुझे प्रोवाइड करा दो। दे कैन प्रोवाइड। Okay. ठीक है। नाउ Yes. विक्टर टैंगो इज यूज फॉर सिविल एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये देखिए विक्टर टैंगो जो रहेगा वो इज यूज फॉर सिविल एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन। एंड जो हमारे डिफेंस या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके अंदर वी हैव रजिस्ट्रेशन एज विक्टर यूनिफॉर्म। ठीक है, VU इज द रजिस्ट्रेशन मार्क फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट। नाउ नेशनैलिटी ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इज इंडिया इज U। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट कौन सा होता है? एनी आइडिया? No. अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मतलब होता है दैट एन एयरक्राफ्ट विच इज ओनली पार्क्ड, सिर्फ खड़ा हुआ Okay. है। ठीक है, वो फ्लाई ही नहीं कर रहा है, उसको बहुत टाइम हो गया, सालों हो गए, वो लाइक कचरे की तरह वो एक जगह पे खड़ा हुआ है। सो दैट इज नोन एज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। मैन्ड मतलब कोई उस चीज की गार्ड कर रहा है। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड, या कोई ना कोई है उसको देखने वाला। अनमैन्ड का मतलब देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर इट, दैट इज नोन एज Yes. अनमैन्ड। ठीक है। अब अनमैन्ड कैरेक्टर है, सॉरी, नेशनैलिटी ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट इन इंडिया इज U, फॉलोड बाय 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बट इट इज ऑल्सो फॉर एवरी एयरक्राफ्ट। ठीक है, 6 डिजिट होते हैं। विक्टर टैंगो 2 डिजिट्स, ये -3 हो गया, अल्फा ब्रावो चार्ली 4, 5, 6। ठीक है, तो ऐसे 6 डिजिट होते हैं। इट कैन ऑल्सो कंटेन न्यूमेरिक लेटर्स ऑल्सो, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, बट अभी तक हमने उसको यूज नहीं करा बिकॉज वी डोंट हैव इनफ एयरक्राफ्ट जो कि अभी हमारे मतलब अल्फा से जेड तक ही पूरे नहीं हो पाए कैरेक्टर्स। सो Hmm. उसके बाद जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वी कैन ऑल्सो एंटर न्यूमेरिक वैल्यूज इन इट। विक्टर टैंगो 1 अल्फा ब्रावो या 2 1 ब्रावो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो VT वाला हमारा है, तो इट इज अलॉटेड बाय इंडिया बाय ITU। वी हैव सीन दैट, ये एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि जो विक्टर टैंगो है या फिर नेशनैलिटी मार्क है, हु गिव दिस नेशनैलिटी नंबर या फिर नेशनैलिटी मार्क, इट इज ITU। ठीक है, वी हैव टू ऑप्शंस, DGCA, ITU और ICAO। My God. ठीक है, सो वो इतना कंफ्यूज कर देंगे कि अगर हमने पढ़ाई नहीं की हो तो 100% हम ICAO करके आएंगे। ठीक है, Right. या फिर DGCA कर देंगे, ITU हमें पता ही नहीं है व्हाट इट इज। तो नाउ विच एयरक्राफ्ट इज नॉट अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 5 लेटर्स, मतलब कौन से ऐसे रजिस्ट्रेशन मार्क हैं दैट वी कैन नॉट यूज इन एयरक्राफ्ट। ठीक है, वी ऑल्सो हैव सर्टेन अल्फाबेट्स। ठीक है, कोई भी लेटर
जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल को बताए। इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसीज व्हाट हैपेंस। टाइटैनिक देखिए आपने, टाइटैनिक। Yes. टाइटैनिक में व्हाट हैपन यार, जब वो शिप को ना सिंक हो रही होती है, तो याद करो हम्म, वो लोग ना गन से कुछ फायर करते हैं, रेड कलर हाँ। का, ग्रीन कलर का सिग्नल। सो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल। ये इसे हम बोलते हैं SOS। ठीक है, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज में हम इनको यूज करते हैं कि यार हम अगर प्रॉब्लम में है तो कोई हमें देखे एंड वहां से हेल्प आ जाए हमारे लिए। ठीक है, सो आर दीज आर नोन एज इमरजेंसी कोड ऑफ सिग्नल्स, ऑल्सो नोन एज SOS। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कोई भी सिग्नल आप यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने आरटी पढ़ा है, वी हैव पेन पेन। ठीक है, पेन पेन भी आप यूज नहीं कर सकते। विक्टर टैंगो PAN, वी कैन नॉट यूज दैट। विक्टर टैंगो MAY, मेडे मेडे वाली कॉल, वी कैन नॉट यूज दैट। विक्टर टैंगो QNH, विक्टर टैंगो QFE, ये सारे कोड वी कैन नॉट यूज। ठीक है, इसके अलावा वी कैन ABCDS, कुछ भी करके वी कैन यूज, बट एनी लेटर विथ Q, एनी थ्री लेटर्स विथ स्टार्टिंग Q लेटर, और डिस्ट्रेस सिग्नल कोड या फिर अर्जेंसी कोड में से वी कैन नॉट यूज दैट। ठीक है ना। यार उसकी स्पेसिफिकेशन दी है, विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली, कैरेक्टर शुड बी 2/3 ऑफ हाइट एंड स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स इज 1/4 विद इन द विड्थ। ये एग्जाम में आया था, आई थिंक अक्टूबर सितंबर समथिंग के आसपास में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो स्पेस रहती है रजिस्ट्रेशन मार्क के बीच में, जो स्पेस रहती है वो कितनी होनी चाहिए। इट शुड बी 2/3, इट शुड बी 1/4, और थर्ड 3/4। ऐसे ऐसे कंफ्यूज करते हैं। सो द स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स शुड बी 1/4 विद इन द विड्थ। ठीक है, विद इन द 1/4 रहनी चाहिए। नाउ सर्टिफिकेशन, certificate of registration must not be carried all times in aircraft. अच्छा, we have certain documents which are mandatory to carry in aircraft. Can you name some? Any? Um, there is this form. I can't recall it. नहीं नहीं, we have few documents. For example, airworthy document you have to carry. Yeah. Next is license of the pilot we have to carry. ठीक है, Correct. जो क्रू ऑपरेट कर रही है उनकी डिटेल्स। ठीक है, so we have certain amount of documents which we have to carry on board, but the only certificate of registration, it is not required to carry, it is not mandatory. If you want, you can carry as well। ठीक Okay. है, तो वो पूछेगा, क्योंकि हम लोग वो आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे, सो वी विल कम टू नो दैट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इज रियली वेरी रिक्वायर्ड to carry, which is mandatory to carry in the aircraft, but the certificate of registration is not required। और क्वेश्चन यही आएगा, which document is not required in the aircraft to carry all the time। ठीक है, और वो ऑप्शन ऐसे कंफ्यूज करके देंगे कि आप गलत करके। सो इट इज द सर्टिफिकेट ऑफ। ठीक है, तो सो हेयर इस जो ये जो चैप्टर है इसमें से बताओ इंपॉर्टेंट जो आता है, वो Mm, मोस्टली आएगा ये सिविल एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट का साइन। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक 5 है या 6 है, 5 भी ऑप्शन रहता है, एंड लोग 5 करके आते हैं बिकॉज यहाँ पे 5 लिखा है। VT अल्फा ब्रावो चार्ली, ये 5 है, लेकिन दे डोंट काउंट दिस, डैश ऑल्सो इंक्लूड 1। ठीक है, सो देयर आर 6 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ठीक है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन दे मोस्टली आस्क। थर्ड क्वेश्चन इज रजिस्ट्रेशन मार्क कौन देता है। ठीक है, इट इज गिवन बाय ITU, नेशनैलिटी मार्क गिवन बाय ITU। ठीक है, नेक्स्ट इज हाँ ये लाइटर देन एयर, कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। फ्यूजलाज, अगर फ्यूजलाज पे हम रजिस्ट्रेशन मार्क लिखेंगे कितने सेंटीमीटर का इट शुड बी। विंग्स पे अगर हम लिख रहे हैं सो कितने सेंटीमीटर का इट हैज टू बी। ठीक है, so these are the questions which are frequently asked by D। If you want, you can also mark or underline। ठीक है, and the most important among this is this one, रजिस्ट्रेशन मार्क मैंडेटरी है। ये कौन से आयकाओं के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। सो इट इज मेंशन्ड इन एनेक्स्चर 7। ठीक है, एंड द नेशनैलिटी रजिस्ट्रेशन मार्क इज स्टैंडर्ड ओनली।
It is not recommended practice. It is standard. Every country has to register its aircraft. It is mandatory. ठीक है प्रणिका, got it? Yes. Any doubt in this? No. No? चलो. Shall we move to another chapter? Okay. Well, regulations is all about theory. Yeah, it Does is. it? It is. It's all about theory. We don't have any numerical in regulation. So it is easy. Easy है. But the thing is, again, it is lengthy है. ठीक है, इसका Okay. सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बहुत ज्यादा सिलेबस है. बट इजी है अगर इसको हम रटने की कोशिश करेंगे. देन दिमाग में ना खिचड़ी बन जाएगी. इट इज Hmm. बेटर टू अंडरस्टैंड एंड टू विजुअलाइज योरसेल्फ. जब हम व्हेन वी स्टडी रेगुलेशन, नेविगेशन और एनी सब्जेक्ट, यार इमेजिन योरसेल्फ दैट यू आर सिटिंग इन द कॉकपिट एंड यू आर द पीआईसी. आप ही Hmm. कमांडर. इस वे में अगर आप चीजों को इमेजिन करोगे ना, तो आपके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो जाएगी प्रणिका, और वो स्टोरी ना हमेशा आपके माइंड में इनबिल्ट रहेगी. कभी वो हाँ. निकलेगी क्योंकि एज अ स्टोरी आपने उसको माइंड में. ठीक है, सो Hmm. इट विल रियली हेल्प यू इन रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग व्हाट यू हैव स्टडीड. रटने से Yes. कोई मतलब नहीं है. मैं बिल्कुल भी रटने के फेवर में नहीं हुआ. चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो. कोई डाउट आ रहा है, अगर एक मेथड से नहीं आ रहा तो दूसरे मेथड से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो बताओ यार, दूसरा वाला चैप्टर करें क्या, और यू वांट Uh, टू गो? if you are comfortable with it, like, नो, आई हैव लाइक हाफ एन आवर टाइम अभी तो है. इफ यू वांट, यू वी कैन डू दिस टुमारो एज वेल. okay, let's do it then tomorrow. If अच्छा. it depends on. या नो इश्यूज, देन वी विल बी डूइंग इट बाय